now showing you these 10 visuals that India Today has accessed. These are the CCTV images of the I-20 car. So on October 29th, the I-20 car was seen at the Al Falah University in Faridabad. On October 30th is when Dr. Umar left and fled Faridabad. On October 30th, also I-20 was captured on the CCTV in at Al Falah University in Faridabad. Now comes November 10. 6:42 a.m. and the I-20 car is seen on the Delhi-Mumbai Expressway. On the same day, later, at 8:03 a.m., the I-20 car is again seen in the national capital entering from the Badarpur border. Then it is seen at the Ashram Chowk on November 10 itself, after which it is also seen on the DND. At 9:22 a.m., it is again seen in the national capital near India Gate, and after which it is seen near Akbar Road. Now remember, these are the VVIP areas of the national capital. This is literally the heart of the national capital where this car was seen on November 10, which is also the day the blast happened. It was also seen at Connaught Place Outer Circle on November 10 itself, and in fact, more such VVIP areas, we have accessed the CCTV at 2:10 p.m. It was still in the national capital at the Barakhamba Road. So these are the areas that the car traveled through on November 10, the same day the Red Fort blast happened. So on October 30th, the car fled from Faridabad. It was seen first at the Al Falah University. On November 10, it was seen entering the national capital through the Badarpur border. It was earlier seen at the Delhi-Mumbai Expressway, after which it was seen entering the national capital through the Badarpur border, and after which it was continuously seen in the heart of the Delhi, passing through the VVIP areas of the national capital, which include the Akbar Road, Tughlaq Road, near India Gate, and also Barakhamba Road. So these were the areas that the car passed through, and what's even more shocking, that not even once did the car pass through any security check. It was traveling through these VVIP areas unchecked. And we now get you more details. So at 9:26 a.m., you can see the car passing through the Akbar Road. VVIP, extremely VVIP area. So many VVIPs reside nearby, and this is the Kartavya Path. At 9:31 a.m., the car was seen at Kartavya Path. At 9:35 a.m., Lodhi Road, literally the center of the national capital where all the VVIPs reside. At 2:04 p.m., Connaught Place. So from 8 a.m., we're tracking the movements of the car till 6:50 p.m. 2:10 p.m. it was seen near Barakhamba Road. 2:17 p.m. Ramleela Maidan. And remember, the blast happened at 6:50 p.m. My colleague Arvind Oja continues to stay with us. Arvind, जो I-20 है वो सुबह 8 बजे दिल्ली में घुसती है, शाम को 7 बजे के अराउंड, 6:45 बजे ये ब्लास्ट होता है. लिटरली 11 घंटे के लिए ये गाड़ी नेशनल कैपिटल में घूमती रहती है, देश की राजधानी में घूमती है, बिना किसी सिक्योरिटी चेक के. ये क्या दर्शाता है? सिक्योरिटी लैप्स दिखाता है. आपको बताऊं, कर्तव्य पथ, लोधी रोड, तुगलक रोड, ये वो इलाके हैं जो पार्लियामेंट से बेहद करीब है. कर्तव्य तो पार्लियामेंट से बेहद, कर्तव्य जो पथ है वो पार्लियामेंट से बेहद करीब है. अब दिल्ली पुलिस ये दावा करती है कि जो स्ट्रीट पर तमाम गाड़ियों की चेकिंग होती है और इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी डालती है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब एक टेररिस्ट I-20 कार लेकर, जिसमें विस्फोटक एक्सप्लोसिव लदा होता है, वो लेकर घूमता है तो क्या हाल होता है. तो एक टेररिस्ट ने एक्सपोज करके रख दिया है पूरी तरह से कि किस तरह से वो बिना चेकिंग के वो कार लेकर दौड़ा रहा है. और देखिए, ये जब कार दौड़ रही थी तो उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में एक्सप्लोसिव भी था, जो कर्तव्य पथ, लोधी रोड, तुगलक रोड, इंडिया गेट के पास शाहजहां रोड, इन तमाम इलाकों से गुजरा हुआ दिखाई दे रहा है. इसमें लैप्स ये भी है कि जो फरीदाबाद पुलिस है, और बार बार हम इसलिए करें, फरीदाबाद पुलिस अगर टाइमली जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का CCTV फुटेज है वो खंगालती तो पहली लीड तो वहीं मिल सकती थी. दिल्ली में हो सकता है इस कार की फिर एंट्री न हो, या एंट्री करने की कोशिश करता उमर उस वक्त तो ये कार रोकी जा सकती थी, पकड़ी जा सकती थी, लाल किले तक पहुंचती ही नहीं. नंबर 1. नंबर 2, जब दिल्ली में एंट्री हो भी गई, और देखिए 10 नवंबर की बात करें तो 10 नवंबर को
फरीदाबाद में 2900 केजी एक्सप्लोसिव पकड़ा जा चुका था। उस वक्त दिल्ली पुलिस को अलर्ट होना चाहिए था, क्योंकि उसके एक पड़ोसी स्टेट में इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, 8 टेररिस्ट अरेस्ट हो चुके थे, 2900 केजी से ज़्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल रिकवर हो गया था। तो दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रहना चाहिए था। कम से कम बॉर्डर एरिया में चेकिंग जरूर होनी चाहिए थी, जो चेकिंग नहीं थी। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि हमारे पास कोई इनपुट शेयर नहीं किया गया था। तो ब्लेम ग्लेम का गेम चल रहा है। इन सबके बीच ये जो सीसीटीवी फुटेज हमने एक्सेस किया है, ये दिखाता है कि किस तरीके से जो वीवीआईपी इलाके, उन इलाकों से ये जो कार है वो गुजरी थी। अरविंद, इनफैक्ट इंडिया टुडे ने एक और फोटो एक्सेस किया है एक्सक्लूसिवली उमर का, जिसमें कि वो डॉक्टर्स अटायर में देखा जा सकता है। उसके गले में एक स्टेथोस्कोप भी है। क्या आप उसके बारे में हमें और जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, इंडिया टुडे ने फर्स्ट टाइम क्लियर इमेज जो आतंकी जैश का है उमर, उसकी फोटो एक्सेस की है, जिसमें वो डॉक्टर के कपड़ों में नजर आ रहा है। अब इसको डॉक्टर देती आप कह सकते हैं, क्योंकि अमूमन इस तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं, कोई शक नहीं करती है कभी एजेंसी की ये किसी टेरर मॉड्यूल से जुड़ा होगा। तो ये आप देखिए कि पूरी तरह से डॉक्टर के वेश में है। जो डॉक्टर्स आला लटकाए रहते हैं, वो आला लोगों की नब्ज टटोलते हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये उमर, जिसके दिमाग में दिल्ली के अंदर एक बड़े बम धमाके की प्लानिंग चल रही है। तो ये सीसीटीवी, ये जो पिक्चर है वो हमने एक्सेस किया है, जिसमें जो जैश का टेररिस्ट उमर मोहम्मद एलियस उमर नबी, वो डॉक्टर के ड्रेस में दिखाई दे रहा है। और यही चौंकाने वाली बात है एजेंसियों को भी, और आम लोग भी चौंक रहे कि कैसे एक डॉक्टर्स का ग्रुप वो जैश का मॉड्यूल खड़ा कर देता है, जिसमें कई डॉक्टर होते हैं। 2900 केजी एक्सप्लोसिव वो इकट्ठा करते हैं, और दिल्ली के अलावा देश के कई इलाकों में बड़े बम धमाके की प्लानिंग कर रहे थे ये डॉक्टर के वेश में। अंजलि जी अरविंद, इस ब्लास्ट के बाद जो सिक्योरिटी है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं? क्लियरली हमने देखा नवंबर 10 को कैसे ये गाड़ी बिना किसी चेकिंग के घूमती रहती है। तो क्या अब क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड? देखिए, अभी जाहिर सी बात है, ये जितने सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर वो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। और इस ब्लास्ट के बाद भी चूंकि दिल्ली पुलिस की पहली प्राथमिकता यही थी कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके बारे में दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर यूनिट है, स्पेशल सेल, उसने अलग से एक एफआईआर कॉन्स्पिरेसी की रजिस्टर्ड की है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है किस तरह से उमर दिल्ली पहुंचा, क्या उसके साथ कोई एसोसिएट भी तो नहीं है, क्या और एक्स्ट्रा एक्सप्लोसिव वो कहीं इन लोगों ने छुपा कर तो नहीं रखा। ये तलाशी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से इंडिया टुडे की स्क्रीन पर हम 43 सीसीटीवी इमेज दिखा रहे हैं, 43 लोकेशन पर टेररिस्ट उमर की, उसके बाद जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस नए सिरे से जो सिक्योरिटी चेकिंग है उसके बारे में एक प्लान ऑफ एक्शन जरूर तैयार करेगी। अंजलि जी।